Hello everyone. So this is the continuation of work, energy and power. This is a part 2 video. So in this video we're going to talk about power. So in last video we did what all about work, units of work, conversion of from CGS to SI unit, right? CGS to SI हम लोग ने क्या पढ़ा था? That 1 joule is equal to 10 raised to 7 ERG. ठीक है? So ये क्या था तुम लोग का SI unit to क्या था? CGS unit conversion था, right? So we did all these things, right? Now we're going to discuss about what power, right? Okay. So what is power? Power is what basically rate of doing work. Power is nothing but rate of doing work. That means how much amount of time will require, okay, to complete that particular work. That means power is equal to what? W by T. This is your power ka formula. Or you can say definition. Power is what? The work done upon time or amount of rate of what? Doing work. That in how much amount I am doing my work. Okay, so each person has different amount of power. Yes or no? Yes. I'll give you an example. Let's say there are two cases. Case number 1 and case number 2. Now, in case number 1, boy 1 is doing a work. Okay, is doing a work. Let's say W, which is equal to let's say 500 joules. Okay, and here also he is doing what 500 of joules. Yes or no? Both are doing same work, right? Let's say both are what applying some force on the what box. जो बॉक्स मूव हो रहा है, ठीक है, दोनों का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है. दैट्स व्हाई वहां पे मेरा वर्क डन दोनों का क्या सेम है कि यहाँ पे भी ये वर्क डन कितना 500 जूल्स का कर रहा है, ये भी वर्क डन कितना कर रहा है 500 जूल्स का कर रहा है. बट दिस गाय, ठीक है, दिस गाय इज टेकिंग टाइम व्हिच इज इक्वल टू लेट्स से about let's say 5 seconds, and this guy is taking time which is about let's say 10 seconds. Yes or no? So which will have a greater power? Which will have a greater power? If I calculate here power, ठीक है, so power for this power is equal to what 500 divided by 5. Yes or no? So answer will be what 100. Yes or no? Here the power will be what 500 by 10. So answer will be how much 50. Yes or no? That means obviously the case 1 has a greater power. Yes, I am not writing the unit because we'll discuss later कि यूनिट क्या है. That's why अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है. 100 इज माय मैग्नीट्यूड, 50 इज माय मैग्नीट्यूड. यूनिट पे हम लोग आएंगे, बट पहले देखते हैं कि किसका पावर ज्यादा है. ऑब्वियसली केस 1 हैज अ ग्रेटर पावर. यस और नो? दिस हैज व्हाट ग्रेटर पावर, राइट? ठीक है. सो दिस विल हैव व्हाट अ ग्रेटर पावर, दिस विल हैव व्हाट अ लेसर पावर. ठीक है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन ही इज कवरिंग और ही इज डूइंग अ वर्क इन अ लेसर टाइम कंपेयर टू व्हाट in this case. Yes or no? So this boy is doing a work very much faster and just doing what? Taking more time. Yes or no? Let's say, if I give an example, let's say this boy is what doing a work to let's say travel from let's say floor 1 to let's say floor 5 and doing a work of 500 joules. वो 5 सेकेंड में फ्लोर 1 से फ्लोर 5 फट चढ़ गया. ठीक है. ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बट ही इज टेकिंग 10 सेकेंड्स. यस और नो? ठीक है. ये हुसैन बोल्ट है, ये फट भाग के चला गया. ठीक है. इसको टाइम लग रहा है, समझा? तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में पावर, किसमें पावर ज्यादा रहेगा? इसमें. दोनों वर्क डन क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं. दोनों 5th फ्लोर तक जा रहे हैं, दोनों 500 जूल्स ऑफ वर्क कर रहे हैं, बट फास्टर कौन कर रहा है वो पता था मुझे. पावर. सो हियर द पावर इज व्हाट? द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, कि कितने टाइम में मेरा वर्क क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है. समझा नहीं समझा? दिस इज नोन एज अ पावर. Yes or no? The rate of doing work, कि कितना फास्ट मेरा वर्क होगा. Yes. So what is the definition? The rate of doing work is called as your power. ठीक है. Measurement of power. Power is what? Work done upon time. ठीक है. So what is the unit of work done upon time? Before discussing the unit, there is one more thing. ठीक है. One more formula related to what power. ठीक है. So we'll do that. ठीक है. यूनिट पे हम लोग आएंगे. ठीक है. एक छोटा सा एक और एक फॉर्मूला है. वी नो दैट पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू F इनटू S. सब्स्टिट्यूट दिस इन हियर. सो पावर विल बी इक्वल टू हाउ मच? पावर विल बी व्हाट? F इनटू S by T, राइट? व्हाट इज S by T? व्हाट इज S? S इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 वन डायमेंशन मोशन में पढ़ा है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अ वेलोसिटी. यस. So power is also equal to what? Force into velocity. If force and velocity both are given, then also we have what? This power is equal to force into velocity. So remember, it is very easy. मैंने सिर्फ substitute किया हुआ है और यहाँ पे इसको velocity कर दिया हुआ है. So a small derivation, ठीक है. So there is one more formula which is related to power, which is force into velocity. Okay. Yes. Now we'll come back to what our units. Which are the units are given to what? A power. Yes or no? ठीक है. So we'll go to the unit part.
Okay, so now here, so if let's say I have written power is equal to work done upon time. So if I need to do what work का यूनिट क्या है? जूल्स. What is the unit of time? Seconds. That means power is equal to what? Joules per second or joule raised to -1, joule second raised to -1. Yes, and also power has a unit which is watts. How much amount of power is denoted in watts? कितना वॉट पावर. ठीक है, तुम लोग के घर में पावर सप्लाई आता है, राइट? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिससे किस तरह पावर सप्लाई, तो वहां पे लिखा रहता है वॉट्स. ठीक है, 440 वॉट्स. ठीक है, डेंजर लिखा रहता है ना वहां पे, डेंजर 440. ठीक है, फिर ऐसा खोपड़ी का ऐसा सिंबल होता है 440 वॉट्स. वॉट्स क्या पावर है? ठीक है, वो पावर है, समझ रहे तुम लोग को? 440 वॉट्स. ठीक है, तो पावर हैज आल्सो यूनिट ऑफ व्हाट? वॉट्स. ठीक है, और सिंपल वे में लिखेंगे तो क्या रहेगा? W इज योर डिनोटेड बाय वॉट्स. सो जैसे हम लोग ने डेफिनेशन किया था 1 जूल. ठीक है, 1 जूल का डेफिनेशन किया था, वैसे हम लोग 1 वॉट का करेंगे. 1 वॉट, इफ आई नीड टू डू power, if I want a power of 1 watt, I required 1 joule of I need to do 1 joule of work in 1 second. I need to do 1 joule of work in 1 second. Yes, अगर 1 watt का पावर करना है मुझे, ठीक है, if I need to apply power of 1 watt, I required 1 joule of what I need to do 1 joule of work done in 1 second. Then I'll get what 1 watt. Clearly समझ रहा है? So these are the unit of what? Power. पावर का क्या यूनिट हो गया? ठीक है, there are different unit also पावर के लिए. अगर मैं ये तुम लोगों को बोलूंगा तो ये कौन सा SI यूनिट है? वॉट और जूल पर सेकेंड. यस और नो? वी ऑल्सो हैव व्हाट? SI यूनिट के बाद क्या अपने पास CGS यूनिट है, तो अपने को पता है पावर इज इक्वल टू व्हाट? जूल्स पर सेकेंड. ठीक है, और जूल्स की जगह पे ARG पर सेकेंड भी लिख सकता हूं. यस और नो? बिकॉज ARG क्या है? CGS यूनिट है. किसका? वर्क डन का. एज सिंपल एज दैट. यस और नो? ऑल्सो पावर इज मेजर इन व्हाट? हॉर्स पावर. ठीक है, जैसे तुम लोग का कार्स हो गया, ठीक है, व्हीकल्स हो गए, बड़े बड़े मशीन हो गए, वहां पे हॉर्स पावर होता है. ठीक है, दे आर मेजर इन हाउ इन व्हाट? हॉर्स पावर. सो उसका यूनिट क्या है? 1 हॉर्स पावर. ठीक है, सो हॉर्स पावर का डेफिनेशन क्या है? इट इज अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज इन व्हाट? मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल मतलब मशीन्स में यूज होता है. ठीक है, बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं, या फिर कार हो गया. कार का हम लोग अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कार एंड एवरीथिंग, तो उसका स्पेसिफिकेशन देखिए तो वहां पे हॉर्स पावर लिखा रहता है. तो इतना हॉर्स पावर उसका पावर है. ठीक है, यस और नो? तो हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट जहां पे पावर इज इन व्हाट? इन ग्रेटर अमाउंट. दैट्स व्हाई दे आर यूज व्हाट? हॉर्स पावर. ठीक है, सो वी हैव अ रिलेशन ऑफ व्हाट? हॉर्स पावर. दैट 1 हॉर्स पावर, 1 HP, हॉर्स पावर इज HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स. ठीक है, याद रखना है. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स. और अगर मैं क्या करूं? किलोवाट्स में कन्वर्ट करना, तो 0.746 किलोवाट. किलो का मतलब हम लोग ने देखा, किलो मतलब 10⁻3. ठीक है, 10⁻3. ठीक है, अगर मैं 0.746 इंटू 10⁻3 करूंगा तो वापस 746 वॉट्स मिल जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर कि हॉर्स पावर का ये है, समझा? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि हॉर्स पावर उसका यूनिट है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर. ठीक है, नाउ देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन पावर एंड वर्क डन. ठीक है, पावर एंड वर्क. तो पहले फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ठीक है, दोनों का ऑब्वियसली डेफिनेशन है. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन क्या है तुम लोग का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डेफिनेशन देखो, वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोर्स अप्लाइड एंड अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड. ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ बॉडी हैज बीन डिस्प्लेस्ड इज योर वर्क डन. डेफिनेशन ऑफ वर्क डन लिखना है. यहाँ पे पावर का डेफिनेशन लिखना है. पावर का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर. यस और नो? सेकंड क्या लिख सकते हो? दोनों का फॉर्मूला लिख दिया. यस और नो? दोनों का फॉर्मूला लिख दिया. नाउ थर्ड पॉइंट अभी हम लोग को पता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला क्या लिखा तुम लोग ने? W इज इक्वल टू क्या लिखा? F इंटू S. यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या? वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, सो योर पावर डिपेंड्स ऑन योर टाइम. यस और नो? कि कितने टाइम में, हम लोग ने देखा यहाँ पे केस 1 और केस 2 लिया था, राइट? ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा था टाइम पे. इसलिए देर 10 सेकेंड्स लिया था, इसलिए 5 सेकेंड्स लिया था. यस और नो? That means your power depends on time, but your work done does not depend on time. Yes or no? So this is your third point, that your work done does not depend on time, but your power depend on time. Yes or no? This is your third point, distinguish का. Clear? And the fourth and last point, unit लिख सकते हो. ठीक है, इसका यूनिट क्या है? जूल्स. इसका यूनिट क्या है? वॉट्स. सिंपल as that. यूनिट लिख दो. 4 पॉइंट हो गया, बस 2 मार्क के लिए आएगा. 4 में से 4 मिल जाएगा.
2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो स्टार पॉइंट लिख दिया, सिंपल राइट। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड डिपेंड करता टाइम पे, नहीं करता टाइम पे, और यूनिट, यस और नो। सिर्फ एक पॉइंट हम लोग को नया सीखने मिला, क्या टाइम पे डिपेंड कर, पता था बट हम लोग को और अच्छे से डीप में सीखा कि टाइम पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन योर पावर एंड वर्क, yes or no. Now the new topic about this is what your energy, which we have discussed. Okay, we have discussed a little bit of it in your first video. Okay, first video में क्या discuss किया था about energy, right? What is energy? Energy is what capacity to do work. मैंने बोला था capacity, कितना amount of capacity उसके अंदर. So capacity to do work is known as your energy. कितना amount of energy है उसके अंदर, yes or no? Capacity to do work. So energy is also what form of what work done. Work done भी क्या energy है ना? अगर मेरे में energy है तो ही मैं work कर पाऊंगा. मैंने example दिया था, ठीक है? If I don't have any amount of energy, I won't be able to do any work. ठीक है, मैं किसी बॉडी को पुश नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, right? So I require energy. So what is the definition? The capacity to do work is known as your energy. Now again, energy has what lot of units. ठीक है? So एकदम शांति से बैठ के देखो यहाँ पे कि एग्जैक्टली कौन से यूनिट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कन्वर्जन, बट यू हैव टू लुक एट हियर। ठीक है, अगेन एनर्जी है तो एनर्जी क्या रहेगा, जूल्स रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट उसका यूनिट क्या होगा, जूल्स। ठीक है, फिर ये कौन सा हो गया, एसआई हो गया। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस इज योर ईआरजी, यस और नो। एनर्जी एंड वर्क डन क्या है, सेम है ना। जितना एनर्जी रहेगा, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी एंड वर्क का यूनिट क्या रहेगा, सेम, जूल्स एंड ईआरजी, यस और नो। बट एनर्जी मतलब सिर्फ वर्क डन में नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस और नो। हीट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया। तो उसके लिए भी क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे हीट एनर्जी के लिए हम लोग कैलोरी यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉन से एटम है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज यूज करते हैं, राइट। सो एनर्जी है, तो एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट, टाइप्स, यस। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब हम लोग पार्ट बी में, ठीक है, ये चैप्टर के पार्ट बी में सीखेंगे। अभी तो पार्ट ए ही चल रहा है, ठीक है। पार्ट बी में टाइप्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब एनर्जी, सब एनर्जी पढ़ने वाले, ठीक है। दैट्स व्हाई एनर्जी हैज लॉट ऑफ यूनिट्स, बिकॉज टाइप्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अगर हम लोग को क्या करना है, एनर्जी मेजर करना है, ठीक है, इन क्या करना है, वॉट आर, तो 1 वॉट आर, ठीक है। सो यू आर द बिगर यूनिट, जो बड़ा यूनिट होता है एनर्जी का, वो हम लोग क्या करते हैं, किलो वॉट पर आवर या वॉट पर आवर। हम लोग सीखेंगे किलो वॉट पर आवर, किलो वॉट पर आवर। किलो मतलब क्या होता है, 10 क्या होता है, 3 वॉट पर आवर, ठीक है। वॉट पर आवर, आर मतलब कितना आवर होता है, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। हम लोग को पता, अगर नहीं पता है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, 60 into 60 मतलब कितना आ गया, 3600, यस और नो। 3600 हो गया। सो अगर मुझे क्या करना है, 1 वॉट पर आवर, किलो वॉट पर आवर करना है, तो पहले उसके पहले मैं क्या करूंगा, वॉट पर आवर, ठीक है, यस और नो। अगर 1 वॉट इन 1 आवर, ठीक है, 1 वॉट इन 1 आवर मतलब 1 आवर है, 1 आवर को कन्वर्ट करना तो क्या आएगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना, 3600, यस और नो। दैट मीन्स 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600, कितना रहेगा, 1 वॉट पर आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, कितना रहेगा, 3600 जूल्स। 1 वॉट पर आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। तो मैंने क्या किया, मैंने कन्वर्ट किया वॉट से, इसमें कन्वर्ट किया जूल्स में। दैट मींस योर 1 वॉट पर आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, एज सिंपल एज दैट, यस और नो। समझा तुम लोग को कैसे कन्वर्ट किया, नहीं, ठीक है। वापस एक बार, ठीक है। अगर बिगर यूनिट, एनर्जी का बिगर यूनिट क्या है, वॉट पर आवर एंड किलो वॉट पर आवर। तो वॉट पर आवर मतलब क्या रहेगा, ठीक है, 1 वॉट इंटू आर, ठीक है, यस और नो। ओके, ठीक है। ये पहले कहां से, हम लोग को पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ऐसे लिख सकता हूं मैं। सो वर्क डन इज योर एनर्जी, अगेन पावर है और टाइम है। तो पावर क्या है तुम लोग का, किस में मेजर होता है, वॉट्स में। टाइम किस में मेजर होता है तुम लोग का, आवर्स में। तो वॉट पर आवर हो गया ना, वॉट इंटू आर, ठीक है, यस और किलो वॉट पर आवर और वॉट पर आवर, दिख रहा है, पर आवर, वॉट पर आवर। तो यहां से आया तुम लोग का यही फॉर्मूला से, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम किया तो व्हाट आ रहा है ना तुम लोग का, यस और नो। सो ये यहां से आया। सो बिगर यूनिट है ये किसका, वॉट आवर एंड किलो वॉट पर आवर। सो वॉट पर आवर मतलब क्या रहेगा, 1 वॉट इनटू क्या रहेगा, 1 आवर। सो कन्वर्ट करना है यहाँ पे, 1 इंटू क्या होगा, 3600, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, यस।
उस हम लोग का जो भी जूल्स होता है, जूल्स पर सेकंड होता है, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो आंसर क्या आएगा मेरा 3600 जूल्स. सो 1 वॉट पर आवर, ठीक है, और कैपिटल लिख सकते हो 1 नहीं स्मॉल 1 वॉट पर आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, ये याद रखना है, ठीक है. एंड 1 किलोवाट पर आवर, किलो मतलब 10⁻³ दैट्स इट. ये जो आंसर मिला, ये जो आंसर मिला 3600 इंटू 10⁻³ कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. सो आइदर ऐसे लिख सकता हूं, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा 5 जूल्स, और 3.6 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा 6 जूल्स, ठीक है. मैं वापस यहाँ पे लिखता हूं, वॉट आर इज इक्वल टू कितना हो गया 3600 जूल्स, ठीक है. वही तुम लोगों को क्या किलो वॉट पर आर, तो किलो मतलब क्या आएगा 3600 इंटू 10⁻³ किलो मतलब क्या होता है इंटू 10⁻³ होता है, ठीक है. यस, सो क्या करूंगा यहाँ पे 36 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ so 36 into 10⁵ joules, 3.6 into 10⁶ joules. Can I write this? 3.6 into 10⁶ joules. ठीक है, मैंने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया. Yes or no? So अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3.6 into 10⁶ है. 10⁶ मतलब क्या मेगा. So 1 kilowatt per hour is equal to 3.6 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी. 3.6 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी, ये चीज याद रखना है. यूजुअली तुम लोग को वॉट पर आवर नहीं आता है, किलो वॉट पर आवर बहुत टाइम क्वेश्चंस में आते हैं. किलो वॉट पर आवर, किलो वॉट पर आवर, किलो वॉट पर आवर, ठीक है. सो ये याद रखना है कंक्लूजन. 1 किलो वॉट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स. कितना मेगा जूल्स? यस और नो, मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी. यस, दिस वाज अगेन द बिगर यूनिट ऑफ व्हाट एनर्जी. ये बड़ा यूनिट है एनर्जी का. वैसे ही किलोवाट पर आवर हो गया, वैसे कैलोरीज है, ठीक है. क्या है, मैं तुम लोगों को बोला कैलोरीज. कैलोरीज मतलब क्या रहेगा तुम लोगों का, कैलोरीज मतलब हीट एनर्जी में कैलोरीज होगा, इतना कैलोरी बर्न हुआ. यस और तुम लोग बोलते हो ना बॉडी में इतना कैलोरी, इतना कैलोरी बर्न हुआ. सो कैलोरी मतलब हीट एनर्जी जो हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, दैट इज नोन एज कैलोरीज. क्लियरली समझ रहे हैं? यस, सो दिस इज नोन एज कैलोरीज. तो हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड, सी लिखा हुआ, हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन व्हाट कैलोरीज, ठीक है. सो अभी अगर लेट्स से मुझे पर्टिकुलर बॉडी है, लेट्स से बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, इसका अगर टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, ठीक है. सो कैलोरी का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस. कितना? 1 डिग्री सेल्सियस. जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए एक बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए. लेट्स से इसका टेम्परेचर अभी है 14.5 डिग्री सेल्सियस. सो 14.5 से अगर मैं 15.5 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं, इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आई नीड, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीज. इतना कैलोरीज चाहिए मुझे. समझा नहीं समझा? सो 14.5 से अगर 15.5 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीज. This is the definition of calorie. Okay. So 1 joule, ठीक है. अभी conversion वापस याद रखना है कि 1 joule is equal to how much and 1 calorie is equal to how much. So you have to remember that 1 joule is equal to 0.24 calories or 1 calorie is equal to 4.18 joules. बस that's it. ये कन्वर्जन याद रखना है. तुम लोग को क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सर ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग, सर क्यों सीख रहे हैं, क्यों? बिकॉज तुम लोग को क्या दिया रहेगा कि आंसर समझो तुम लोग का आया जूल्स में, ठीक है. मैं बोलूंगा लेट्स से 100 जूल्स आया, ठीक है. वर्क डन किया, पावर किया, जो भी किया, 100 जूल्स आया. क्वेश्चन में पूछा रहेगा फाइंड इन कैलोरीज. कैलोरीज में पूछा, राइट? यस और नो. तो 100 जूल्स हम लोग को 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस मच जूल्स. क्या करेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस मच जूल, तो 100 जूल्स इज इक्वल टू x क्रॉस मल्टीप्लाई. यस और नो, सिंपल, राइट. या फिर ऐसे यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू दिस मच कैलोरी, तो 100 जूल्स इज इक्वल टू x. 100 इंटू 0.24 मतलब कितना हो जाएगा, 24 कैलोरीज. सो 100 जूल्स आर इज इक्वल टू 24 कैलोरीज. सो तुम लोग को कन्वर्जन पूछते हैं कि फाइंड इन कैलोरीज, फाइंड इन किलोवाट पर आवर, फाइंड इन जूल्स, फाइंड इन वॉट्स. ये सब तुम लोग कन्वर्जन पूछते हैं. यस और नो. तो कन्वर्जन के लिए ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए अपने को. अगर कन्वर्जन नहीं पता तो हम लोग कैलोरी आंसर मिल जाएगा 100 जूल्स, बट फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है. 3 में से 2, 1.5 डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव सॉल्व्ड, ठीक है. कन्वर्जन चाहिए मतलब चाहिए. अगर पूछा है कैलोरी में तो आंसर हैज टू बी इन कैलोरी.
अगर पूछा है कैलोरी, वॉट्स, जूल्स, वही हम लोग को यूनिट में करना पड़ेगा। यस और नो, समझ रहा है ये कैसा है? तो ये क्या है? हीट एनर्जी के लिए। नाउ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, अभी एटम रहेगा तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है। यस और नो, तो अगर मेरा एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, वो जब एनर्जी, उनके पास कितना एनर्जी है, अगर वो कैलकुलेट करना है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग के पास जो यूनिट है, मैं तुम लोग को ऑलरेडी बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पार्टिकल्स है, एटम के पास पार्टिकल्स है, कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम है उसका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। प्रोटॉन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता, तभी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे हैव रिटन, what? Electron volt. So the energy of an atomic particle is very small, so it is measured in electron volts. So one electron volt is equal to charge of one electron. Yes or no? Charge of one electron into 1 volt. Charge of one electron कितना? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। Yes or no? हम लोग को पता है चार्ज, ये हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। यस और नो, क्या है चार्ज ऑफ वन पार्टिकल? यस और नो, इज व्हाट? 1 पॉइंट। हम लोग ने कहां पे पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ठीक है, एटम्स और वो सब में। 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, ये कांस्टेंट है, ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। 1.6 into 10 to minus 19 कूलम into 1, so 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to minus 19, 10 to minus 19 joules, ठीक है। एंड ऑफ द डे देखोगे तो सबका कन्वर्जन किस में जा रहा है? जूल्स में, ठीक है, सबका कन्वर्जन जूल्स में। इसके पहले भी क्या गया, हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या था कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच? 4.18 जूल्स, और जो भी था, यस और नो, 1 जूल इज इक्वल टू दैट मच। क्लियरली समझ रहे हैं? सो एंड ऑफ द डे सब क्या कहां पे जा रहा है? जूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी जूल्स में किया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to minus 19 जूल्स। तो क्वेश्चन आता है ये काफी टाइम पेपर में, और बहुत टाइम रिपीट हुआ एक पेपर में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूज फॉर व्हाट? is used for what? Energy, to calculate energy, atomic particle का energy. So answer is atomic particle का energy calculate करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज होता है। ये बहुत बार आया और बच्चों का बहुत बार रॉन्ग हुआ है, क्योंकि वो डिटेल में नहीं पढ़ते चैप्टर को, ठीक है। दिस इज देयर इन योर चैप्टर, बट डिटेल में नहीं पढ़ते बच्चे लोग, तो याद रखना ये। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो is we gonna discuss about what? The distinguish between energy and power. Again, क्या करेंगे? एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज व्हाट? द कैपेसिटी टू डू वर्क। पावर क्या है? द रेट ऑफ व्हाट? डूइंग वर्क, ठीक है। फिर दोनों का यूनिट लिखेंगे। एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट इज जूल, पावर का यूनिट इज वॉट्स, ठीक है। एनर्जी व्हाट स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एनर्जी डिपेंड नहीं करता, बट पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन एनर्जी एंड पावर। एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, पावर इज व्हाट? वर्क डन, ठीक है। द रेट ऑफ व्हाट? डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज योर पावर। दोनों का यूनिट लिखेंगे, जूल्स एंड वॉट्स। एंड एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, बट दिस डिपेंड्स ऑन टाइम। वेरी गुड। So this is what all about this video. Okay, so we are done with part A of chapter 2nd. Next video, I'll be discussing about what, how to solve problems and sums and everything. Okay, and then after that you have to what? Solve unsolved example and you have to submit it. Okay, so we'll wind up this video as of now. Okay, thank you.